I just wanted to understand a little bit about how did the idea of engineering to something in the crime. It's not like we were the first who were doing the crime का solution. A lot of companies were already selling something new to the police forces. पर जहाँ पे इतना crime हो रहा है इंडिया जैसे देश में. Mumbai politician shot dead. Bhakna Kalan village near Amritsar waking up to the sound of gunfire. Since May 2023, Manipur has been gripped by ethnic violence. जो देश अगर सुरक्षित नहीं रहेगा वो डेवलप कैसे बनेगा? Pakistani border and the drug trafficking from there. How you guys tackled that? So when you start in Afghanistan, तो 1 kilo heroin is like 1 lakh rupees. When it enter into the Pakistan, it is like something around 10 lakh rupees. जब वो अपने border पे आता है तो it is like 1 CR. और दिल्ली में 1 kilo heroin. How was the first time you approached? We first time approached to the Alwar police. We went with the same thought with the police कि यार हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है अगर आप यूज़ करोगे तो you can catch criminals. तो उन्होंने कहा हमारे पास डेटाबेस ही नहीं है. How did the similar interests come into the picture? हमारा बहुत अलग प्रॉब्लम स्टेटेड. पंजाब हैज अ ड्रग्स प्रॉब्लम, यूपी हैज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्रॉब्लम, बिहार की प्रॉब्लम इज द लिकर. ऑल दिस डेटा इज इन फ्रंट ऑफ पुलिस बट दे कांट एनालाइज बिकॉज दिस इज ऑल ऑफलाइन. तो इसमें आप लोग का रेवेन्यू में काफी दिक्कत होती है. गवर्नमेंट इज ओनली 30% ऑफ आवर रेवेन्यू. Are there any cases or any story that you can tell from the Ayodhya case? In this episode of The Hot Seat, we sit with Atul Rai, co-founder and CEO of StackU. And he has a lot of stories to tell about how his company safeguarded the Ayodhya Ram Janmabhoomi and even helped stop drug trafficking on the Indian borders. Let's dive right into it. Hi Atul, thank you so much for joining us here. I just wanted to understand a little bit about how you got into building StackU because you studied engineering in the US and then you came back. How did the idea of engineering to something in the crime? Thank you, Mohit, first of all, to inviting us to, of course, I just stack you to this platform. So background is very different. Of course, I belong to UP and in UP I belong to Ajamgarh, a place in eastern UP. And my initial whole study and everything was in Hindi medium. I studied till high school in Hindi medium. And then after that, I got into the CBSE board and of course this whole, the engineering part. So the crime and all, of course, since you belong to a place when you, of course, from UP or Bihar, right? So you've seen those kind of things happening around you, right? Yeah. So, and the second part is when you learn and when you try to learn something, let's say the AI, now when I was studying AI, that time the AI was more like, it was understood as a robot or robotics engineering and all, right? When I was studying AI in Manchester or something, so the idea was to how to apply it. It's not like how to write a research paper on it because there are two kind of AI scientists who are exist. Like one is who just want to apply it for some practical use case. One is more towards the writing more and more R&D and of course doing depth research and all. So my focus was more towards writing some application which can help and add impact. So I written my first research paper in 2009 when I was in my BTech. So the idea was to, of course, write something. And that time also it was more towards the adding impact. So I written my first research paper for helping those people who do not have hand and want to control the computer. So they can do like move the cursor by moving the head, blink the eye to move the click the cursor. And that paper got selected in IEEE IPTA conference in Paris. Wow. So that was my first research. So the idea always was like to use the AI for some powerful impact. So this technology is still in infancy. People are still trying to build something. I'll give you a very powerful use case of it. So I developed an app for Panasonic Aluga S. So where you can take a selfie just by blinking the eye. And Varun Dhawan did a rap on that. So just you can blink and take the picture. So the same application which I developed for the physically disabled person to control the computer was utilized in that app. So blinking, identifying the blink, identifying the movement and all this stuff, right? The fascination was more towards the solving the ground level problem because you belong to a place which seen the fundamental problem which exists in the society. Yes. So when you learn something which actually solve those kind of things, you want to use it. So that is what the StackU is. And of course, the good part was all other two founders were also having the similar spirit and also. How did you meet them and how did the similar interests come into the picture? So me, Anurag and Pankaj met in our last organization. We were in touch. So I was in R&D, Pankaj was in backend, Anurag was in engineering. But we all were very fascinated towards the AI. Though the company we were working was not in AI domain, it was a different place.
So we wanted to use AI somewhere which can add value and which can help solve a bigger problem, right? And if you talk about AI in India, we are the largest producer of data after Yeah, China, I believe, right? definitely. So, and of course, the data which is coming is making huge sense, but there's as such no technology, because whatever the technology which is there in India, it is mostly it is being driven by the Western countries, which is having their own models, English-based or Chinese-based models, right? Yeah. A lot of companies are now working on the Indian language models. Yeah. Which There was a actually- recent comparison when someone was saying ki Google and Microsoft are basically like the East India company. They're taking our data and selling us back to us. Yeah, so that is, of course, I mean, of course, people are taking the same thing in a different manner. But of course, India has its own problem, and I think being an Indian, being from the ground zero, you understand that problem in a very powerful manner, and you can give a very powerful solution because you understand that problem. Because with crime also. Right, yeah. तो बिफोर वी वर डूइंग क्राइम, जब हम क्राइम का सॉल्व करने के लिए निकले, तो इट्स नॉट लाइक द वी वर द फर्स्ट हु आर डूइंग द क्राइम का सोल्यूशन. लॉट ऑफ कंपनीज वर ऑलरेडी सेलिंग समथिंग लाइक कमिंग फ्रॉम इजराइल, जापान एंड ऑल टू द पुलिस फोर्सेस. ऐसा कोई इंडिया में था? Is anyone from India? नहीं, दे वर द कंपनीज फ्रॉम इजराइल जो आती Okay. थी, एंड दे वर सेलिंग की फेशियल रिकग्निशन हमारा यूज करो, वी आर Yeah. यूजिंग इट फॉर फिलिस्तीन एंड ऑल, बट दैट नेवर वर्कड फॉर इंडिया बिकॉज वी आर वेरी डिफरेंट कंट्री एंड आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नॉट सिमिलर टू इजराइल. Okay. हमारा बहुत अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट. पंजाब हैज अ ड्रग्स प्रॉब्लम, यूपी हैज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्रॉब्लम. So different states have different problem statement. So this is where we found our space. When we started, the idea was to solve some big data ka problem. And when you talk about big data, it is always images and videos, right? Yeah. Because Instagram से लेके reel तक, मतलब जो भी देखो सब videos के form में, and everyone is consuming and producing in the same format. But that is one of the data in 14 we were thinking that is one of the data which is like not self descriptive. मतलब Okay, हाँ. अगर मतलब मेरी एक कोट कहीं पे किसी मैंने फोटो खींच के किसी फोल्डर में रख दी है, तो आप इसको सर्च नहीं कर नहीं पाओगे कर until सकते. unless you open all the folder and search it, right? Yeah. And still now if you talk about Apple intelligence, that now happened today. This You is can now something- type it and yeah. search it, right? जो पहले मतलब people were not even talking about generative AI Yeah, that is in the picture. तब भी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट Yeah. एग्जिस्ट करती थी कि Yeah. देयर इज अ पिक्चर ऑफ अतुल समवेयर इन सम फोल्डर, इफ यू वांट टू सर्च इट यू कैन नॉट सर्च इट. Yeah. सो दैट डेटा इज वेरी पावरफुल बिकॉज ह्यूमन ब्रेन अंडरस्टैंड दैट डेटा ओनली. मतलब हम चाहे इटली में चले जाएं चाहे इंडिया में चले जाएं, हम फोटो दिखाएंगे तो लोग पहचान जाएंगे, हाँ. बट लैंग्वेज दिखाएंगे तो दे विल नॉट अंडर. दैट्स अ टेक्स्ट डेटा Makes sense. and not even हाँ. the sound data. Maybe I am speaking some Hindi language and Italian people are speaking in Italian language. तो हम दोनों एक language में बात करेंगे, they will not understand, right? Yeah. तो मतलब photo is a powerful data which human brain understand, but they are not able to get anything out of it. Yeah. That is where we developed the first image search. तो आप image search मतलब we started working with the e-commerce companies. Okay. So we were giving our API which extract all the features of their database and then make it searchable just clicking the picture. So let's say you are searching for some lehenga which Kareena Kapoor is wearing in 3 Idiots and you want to search it. So something Click. like Flipkart and all these companies. Exactly. can use it. So Yeah. that time we were working with Jabong, Myntra, Paytm Mall. A lot of companies were using the API in that way. So e-commerce market got consolidated by 17. That time there were no huge number of like e-commerce companies in the market. जो भी थी यही 2 4 5 बड़ी कंपनियां थी. तो when the big companies get consolidated, the smaller companies also get discouraged. हाँ. 2 reasons होते हैं. इन्वेस्टर्स भी उनसे इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, दूसरा उनको लगता है यार इस मार्केट में बहुत जगह नहीं है. Yeah. So we also thought that we are dependent on the B2B and the e-commerce companies, so it will hurt us. So that is the point we decided कि हम थोड़ा pivot करते हैं कुछ और में. And pivot सीधे from this to सीधे और crime एकदम and all. 360 degree difference था. We were like page 3 से सीधा page 2 के crime पे आ गए हम. Page 3 of Daily Times or anything. So हमने एक प्रोडक्ट बनाया था, it's called Tap and Buy. Tap and buy, like you are watching something on YouTube और आपको कुछ अच्छा लगता है, आप टैप करिए and it will directly throw you to the Amazon. Oh, nice. So we developed this for Intex Mobile, Carbon, Panasonic. ये सारे लोग हमारा ये प्रोडक्ट यूज करते थे. अपने उसमें ये बाई बिल्ड इनबिल्ड आता था मोबाइल फोन में. हाँ. Like Indian mobile companies. इंडियन मोबाइल हाँ. कंपनीज में. And we partnered with the e-commerce companies. Okay. कि आपको मतलब हम तब वो रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज देते थे. कमीशन वाज देयर एंड दैट कमीशन वाज गुड. Oh, thanks. तो जो कि अगर मैंने आपको रीडायरेक्ट कर दिया, किसी ने खरीद हाँ. लिया, तो दैट वाज अ मॉडल. तो हमने सेलिब्रिटीज का पूरा डेटाबेस बना रखा था. करीब 10,000 सेलिब्रिटीज थे हमारे पास. Okay. तो जब भी किसी फोटोग्राफ या यूट्यूब वीडियोज में दिखते थे तो उनका वो पीछे से फीचर एक्सट्रैक्ट, तो हम पिक्सल लेवल सेगमेंटेशन तब यूज करते थे. दैट वाज अ न्यू मॉडल केम दैट टाइम. तो भी सेगमेंट की जैकेट है, ये पैंट है, ये शर्ट है, एंड देन वी सर्च इट इन Amazon एंड कीप इंडेक्सिंग इट.
तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, क्लिक किया तो इट सडनली सेंड इट टू अमेजन की अमेजन पे Okay. ये कपड़ा यहाँ पे आप खरीद लो, राइट? Yeah. So now I've seen that something coming in Samsung also. You can select with your pen and buy it. Even Apple also has, हाँ, तो that was a concept we didn't tap and buy in 2017, 15, 16. okay. तो खैर this thing was all like going good, सब कुछ अच्छा था, but the consolidation started, then Chinese companies started coming selling the mobile phone. Yeah. तो उनके साथ पार्टनरशिप करना टफ था. तो वो दैट वाज अ टाइम देन पंकज आल्सो केम, देन वी जंप टुवर्ड्स कि भाई अब कुछ और सोचो क्या हो सकता है इसका. Yeah. तो एट दैट टाइम 17 में फिर वो अपना एक 17-18 में ही 17 एंड से शुरू किया, होमलैंड सिक्योरिटी पे कुछ आइडेंटिफाई किया कि फेशियल रिकॉग्निशन का यूज केस कपड़ा ढूंढने के अलावा, शाहरुख खान को पहचानने के अलावा और कहाँ हो सकता है. हाँ. सो द क्राइम वाज द फर्स्ट थिंग एंड वी वेंट टू द सेम, वो कि जैसे हॉलीवुड में होता है कि वो रन कर रहे हैं एल्गोरिदम एंड एवरी कैमरा इज स्कैनिंग पीपल एंड कमिंग. सो वी वेंट विद द सेम थॉट विद द पुलिस कि यार हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, अगर आप यूज़ करोगे तो यू कैन कैच क्रिमिनल्स. तो उन्होंने कहा हमारे पास डेटाबेस ही नहीं है. हाउ टू, बिकॉज वी हैव ऑल द डेटाबेस इन द फाइल. How was the first time you approached the UP police? No, you started we with? first time approached to the Alwar police. Alwar so police, okay. Alwar में एक केस हुआ, that was some of the cow vigilante killed in a mob lynching to it is famous called murder Well, case. yeah. So we returned to the SSP there. Rahul Prakash sir was there, and now he's I think DIG Bharatpur. तो वी रिटर्न कि दिस इज़ वेयर वी कैन वर्क. तो उन्होंने कहा कि ठीक है आओ. सो ही सेड कि देखो द ग्राउंड रियलिटी इज कि वी डू नॉट हैव डेटाबेस. Okay. ऑफ कोर्स बट आई नो दैट योर मार्केट रिसर्च इज बेस्ड ऑन द हॉलीवुड मूवीज एंड द बॉलीवुड मूवीज, बट देन द ग्राउंड जीरो वी नॉट हैव दैट. They just have FIRs paper. हाँ, में, FIR पेपर yeah. में है, उसमें से फोटोग्राफ भी पेपर पे चिपकी हुई है. हाउ यू विल यूज. हाँ. तो हमने कहा ठीक है ओके. तो ही सेड कि डू वन थिंग, डेवलप एन ऐप टू क्रिएट दीज क्रिमिनल ऑफ इंटरेस्ट, जिससे हम उसको फोटो डाल के पहले उसका डेटाबेस डिस्लाइज कर लें. Okay. सो वी डेवलप्ड जार्विस का पहला पार्ट विच कॉल्ड पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, POI, Okay. और उसका नाम राजस्थान पुलिस ने अभेद रखा, ABHED. Okay. तो जब हमने अभेद बनाया तो उसी के टाइम एक ज्वेलरी लूट का कुछ हुआ केस. Okay. हरिया वॉज अ क्रिमिनल नेम, मुझे अभी सारे केसेस जैसे से याद है. तो वो किसी कैमरे में ही वॉज लाइक गॉट कॉट. They clicked the photo and like the first match came, and of course after the investigation they found that the same guy. तो फिर ये बात पंजाब पुलिस को पता चली कि Like यार, repeated offenders they were हाँ, able to because catch. हाँ. 70-80% of the Indian criminals are repetitive. Okay. मतलब वो ज्वेलरी चेन स्नैचिंग करेंगे, फिर वो करेंगे. मतलब मैं बोलूँगा कि रेलवे में तो 95% है. Yeah. This is where we found this is very powerful use case, and then the Punjab police invited, and at that point of time Dinkar Gupta sir was there. He was ADG intelligence. Okay. और पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस इज अ पावरफुल वन बिकॉज द बॉर्डर स्टेट. इन द सेम वे देयर वाज अनदर ऑफिसर नीलाभ किशोर सर, ही जस्ट रिटर्न फ्रॉम द CBI. हमारा भी लगता है वी गॉट सम वेरी पॉजिटिव वाले ऑफिसर, एटीट्यूड वाले ऑफिसर, बिकॉज पुलिस इज वेरी ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन. Yeah. तो उनको थोड़ा इनोवेशन से उतना वो नहीं, उनको लगता है Technology से कि तो डंडा सब मार के हाँ. क्रिमिनल पकड़े जा सकते हैं. सो he said कि ठीक है let's try this, but we want to try it for 2 or 3 months and then only we'll run this. They call it PIAS now. Okay. It's Punjab Artificial Intelligence System, they named it. तो PIAS was built on the same line कि criminal को register करेंगे और we'll give a app to every officer on ground zero. Okay. इनको कोई suspicious आदमी मिलता है तो उसमें search और ad दोनों का feature है. So You can every search, state, every district started collecting data. collecting data Okay. and on a digital form. Okay. तब CCTNS भी नहीं था वहाँ पे. हाँ. CCTNS is one of the NCRB का पोर्टल from Okay. where you can create the FIR. Okay. तो हर थाने में होता है पर तब नहीं था. Okay. राइट. But how did they scan it? मतलब कंप्यूटर हाँ, तो उसमें सिंपल था, दे जस्ट क्लिक द फोटो ऑफ द फोटोग्राफ्स तो एंड वो सम सब बेसिक upload डिटेल कर- अपने आप Okay. OCR से होता था. एंड सम टाइम दे आल्सो करेक्ट इट. ऑफ कोर्स एवरी दैट टाइम ऑफ द OCR वाज नॉट वेरी परफेक्ट. Yeah. तो ऐसे किया हमने, और उसमें भी कई बार क्वालिटी वाज नॉट वेरी गुड ऑफ द इमेजेस. सो हाउ, तब दैट टाइम वी वर डूइंग इमेज प्रोसेसिंग. अभी तो बहुत जनरेटिव AI भी है, तो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. तो इन दैट वे वी डिस्लाइज द डेटा. द पंजाब वाज द वन व्हिच स्टार्टेड इट इन अ लाइक द स्टेट वाइड. अलवर वाइड इज लाइक अ डिस्ट्रिक्ट वाइड. तो पंजाब बिकम वेरी फेमस फॉर होल कंट्री. मतलब पंजाब में पहले ही साल उन्होंने कम से कम 1200 या 1800 क्रिमिनल पकड़े, Wow. और 3 सालों में उन्होंने करीब 6 टेररिस्ट मॉड्यूल बस्ट किए. So this was using आप लोग का PIAS. Okay. And so this all became a powerful use case of AI in crime. So Okay. that was something कि हमें भी लगा कि यार इतना तो हमने भी नहीं सोचा था कि it will add value, because अगर आप डेटा वाइज जाओ तो इंडिया में लाइक एवरी आवर यू आर हैविंग लाइक 300 IPC क्राइम्स.
Okay. 300 आईपीसी क्राइम दुनिया में शायद ही कहीं किसी भी हमारे बराबर डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा होगा, This is also जो रिपोर्ट होता है. और रिपोर्ट होता है, एंड 100 murders in 1 hour, Yeah. right? So this is like in every hour, every minute, like if you go with the NCRB data, just divide by 24 and 60, you will get the data. So जब ये डेटा हमें अपने ऐप के थ्रू दिखने लगा तो वी फाउंड इट यार इट्स रियली समथिंग व्हिच इज एडिंग वैल्यू, Yeah. and parallelly it also got circulated among the officers, so we started getting recommendations. तो हमें पंजाब ने रिकमेंड किया सीधा बिहार को. Okay. तो बिहार पुलिस में देयर इज अ ऑफिसर कॉल्ड रत्न संजय, तो उन्होंने कहा कि बिहार के लिए बनाते हैं कुछ, तो ही नेम्ड इट प्रहार, देन ही नेम्ड इट चक्रा. तो आप सोच रहे थे कि ठीक है यार यूज कर रहे हैं अपना, क्या जो भी नाम रखे हमें तो जो भी 10-20 लाख मिलता था वी वर हैप्पी कि अभी पहले कुछ नहीं था तो कुछ वी आर स्टार्टिंग मेकिंग मनी. सो वी गॉट बिहार, एंड देन बिहार से वी गॉट रिकमेंडेशन इन यूपी, बिकॉज यूपी इज वेरी टफ स्टेट, Okay. क्योंकि UP has 80 district and on the largest population in the country. तो And also वहाँ the पे highest crime हाँ also. and highest crime also. तो in that way if you have to go to UP and ask someone कि हमें ऐसा करना है, तो पहले तो कोई करे क्यों, 80 डिस्ट्रिक्ट को करे क्यों, और मतलब क्या उसका बेनिफिट है, और क्यों अपने पे कोई लोड ले एज एन ऑफिसर. Yeah. तो उस टाइम एक 4-5 टाइप के ऑफिसर हमें लोग मिले, 4-5 टाइप, मतलब अफकोर्स फ्रॉम द IG लेवल टू ADG लेवल टू DG लेवल, एक पूरी टीम थी उनकी जो दे वांटेड टू डू दिस. सो वी गॉट की यहाँ पे भी ऐसा ही करना जैसे पंजाब में किया है, तो वी डेवलप त्रिनेत्र फ्रॉम देम. तो त्रिनेत्र करने के बाद व्हेन वी वेंट टू द ऑफिसर वाज देयर हु इज लाइक चंद्रप्रकाश सर वाज देयर, ही इज अ DG, ही रिटायर्ड फ्रॉम अ DG प्रिजन. तो उनको किसी ने बोला कि ये ऐप कितने में बनवाई आपने, तो उन्होंने बोला कि ये बनाया इन्होंने 20 लाख रुपए में. Okay. तो दिल्ली पुलिस में किसी ने बताया कि यार ऐसी ऐप हमने 3.5 करोड़ रुपए में बनवाई है. Okay. तो उन्होंने फिर हमें फ़ोन किया, यार तुम इतना सस्ता कैसे बना लिए. तो हमने कहा सर हमें तो पता भी नहीं था, हमने कहा कि मतलब जो अपॉर्चुनिटी है तो वो ले लेते हैं हम, पैसे का तो बाद में डिस्कस करेंगे. तो ही सेड कि वी ऑल्सो वांट टू डू समथिंग वेरी पावरफुल इन जेल्स. हम जेल मॉनिटर करना चाहते हैं. अभी आज तक इंडिया में प्रिजन पे वीडियो एनालिटिक्स कोई दूसरी कंपनी कर ही नहीं पाई. मतलब इट्स लाइक 2019 में हमने किया, बहुत सारे लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी, इवन तिहाड़ इज नॉट एबल टू डू दिस, राइट. तो जिसमें आप यू आर एनालाइजिंग ईच एंड एवरी, कोई फोन यूज कर रहा है, यू आर गेटिंग एन अलर्ट, देयर इज अ फाइट हैपनिंग इनसाइड द जेल, यू आर गेटिंग एन अलर्ट. So this is we built for UP prison department. So the same officer who was doing Trinit, he of course transferred as a DG prison. Okay. And then of course we got some other officers also. Anand Kumar sir came, and other different officers came who supported us in our journey. तो जारविस वहाँ से बना. In Bagpat jail 2019, Okay. a criminal named got killed. He is Okay. very famous criminal, infamous criminal from Eastern UP. And so he got killed inside the prison and no one knows कि क्या हुआ. तो किसी को पता ही नहीं कि कैसे बंदूक गोली अंदर पहुंची, और वो पिस्टल भी नहीं मिली जिससे उसको मारा गया Prison के अंदर. Yeah. प्रिजन के अंदर. सो इट बिकेम अ वेरी बेसिकली वो कि कैसे आइडेंटिफाई किया, बिकॉज कैमराज वेर ऑल्सो नॉट वर्किंग, नो वन इज नोइंग अबाउट इट. सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ऑफिसर सेड कि वी वांट टू रन समथिंग वीडियो एनालिटिक्स इनसाइड द जेल. Oh, nice. And again, most of the, if you go with the crime na, तो most of the criminals, the organized criminals are sitting inside the jail. मतलब सारे top criminals तो जेल के अंदर हैं. हाँ. तो जो बाहर हैं वो क्राइम करते हैं. Okay. So this is where of course Jarvis can identify if someone is taking the phone call inside the jail, और there is a crowd. तो कई बार जेल के अंदर मारपीट होती है, तो वायलेंस डिटेक्शन, क्राउड प्रोटेस्ट होते हैं जेल के अंदर, मतलब लोग खाना नहीं खाते या हाँ. कोई सुसाइड कर लिया, कुछ कर लिया, तो उसको लेके प्रोटेस्ट होता है. बाहर किसी को नहीं पता होता है. तो जेल इज अ वेरी कन्फाइंड एनवायरनमेंट. So, and some of the local officers also do not tell to the senior officers who Yeah. may be sitting in Lucknow or sitting in Bangalore कि क्या हो रहा है, जैसे मैंगलोर की किसी जेल में. Yeah. right? But So this is- cameras installed रहते हैं, but there's no way to analyze. analyze it. So Yeah. that is where we got Jarvis first as our face. And Jarvis, initially when we were like, Jarvis का जब हम नाम रख रहे थे, हाँ. it was Jail AI Research for Visual Instant Stream. फिर हमने सोचा यार जेल रख देंगे तो we'll not able to do the sale to other organization. Like So private sector. हाँ, तो we yeah. kept it Joint AI Research for Visual Instant and Stream. Yeah. So that is how the Jarvis name came. The private sector used it as a Jarvis brand name. Okay. बट पुलिस को हमने फ्रीडम दे दी कि उनको, क्योंकि वो अच्छा लगता था कि दे हाँ. वांटेड, बिकॉज उनका रिवॉर्ड यही है कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड इट्स नेम इज दिस. Yeah. तो वी सेड कि ठीक है यार, किसी बहाने दे विल फाइंड इट कि देयर नेम टैग इज विद दिस, कि मतलब दिस ऑफिसर स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म. But क्या ये app can we also, like normal consumers also use it? Like the data is stored, so people can maybe just click a photo and identify. डेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू ऑल्सो हैविंग टेररिस्ट का डेटा, यू ऑल्सो हैविंग सम ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का डेटा. तो दिस इज व्हाई इट कैन नॉट बी मेड पब्लिक. I mean, we do not have that access as a company of this. It is being hosted at their server. तो
तो ये कोई डेटा स्टैक यू ओन नहीं करता, वी जस्ट प्रोवाइडेड दिस टेक्नोलॉजी। अगर आप त्रिनेत या जारविस या जितने भी प्लेटफॉर्म देखोगे, आप कोई भी मतलब जगह पे कोई नॉर्मल ऑफिसर डेटा सीधा ऐड नहीं कर सकता, तो इट गोज थ्रू DCRB, मतलब डेटा ऐड होने के बाद थाने से DCRB के पास जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, लाइक NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एंड DCRB। तो DCRB जब उस डेटा को येस करता है तो इट कम्स OTP, यानी आपके ऑफिशियल नंबर पे OTP है, आपने वेरीफाई किया तब ऐड किया, इट मींस यू आर गिविंग योर अप्रूवल फॉर दिस डेटा टू बी क्रिमिनल। Every time an OTP हाँ, goes to every it. time it's like the whole day they select all the criminals and then generate the OTP, then they take the approval from superintendent of police। ये उनके डॉक्यूमेंट में भी है, तो SSP of the district और DCP of that district approve it, then only you can add the criminal। तो यानी हम कहीं भी इसको आधार या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। दिस इज व्हाट वी हैव बिल्ट, और वी ऑलरेडी हैव गिवन, मतलब बहुत सारे मीडिया आपको हमने एक्सेस भी दिया कि आप लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। सो दे ऑफिशियली हैव अनाउंस कि दे हैव आइडेंटिफाइड मोर देन 30,000 criminals across all the 9 states। Every day we are identifying more than 100 criminals across all the states। But then if StackQ doesn't have the data, how did you build the model then? How did you train तो it? हाँ, there are two things। So one is fine tuning and one is a build the model। Okay. So building the model on any open source is not tough task. Fine tuning is something which you want to do so that it should have a guardrail, it should not hallucinate when you talk about GPT and all। हाँ. तो वो हमने उनके डेटा पे किया कि ठीक है, अभी क्योंकि अभी क्राइम पे आप सर्च कर रहे हो और वो आपको कुछ लिटरेचर पे रिजल्ट दे रहा है, यू डोंट वांट टू हैव दैट, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच वी फाइन ट्यून बिकॉज वी ऑलरेडी स्टार्टेड कलेक्टिंग द डेटा फॉर लास्ट whatever 5-6 years। तो डेटा तो हमारे पास था, बट जब Gen AI आया then we got कि अच्छा ठीक है, let's use it those data for even further powerful use cases। और यूपी पुलिस ने हमें, अच्छा यूपी पुलिस को जब सक्सेस मिलने लगी तो देन यूपी पुलिस बिकम वन ऑफ आवर लाइक से द फ्लैग बेयरर इन टर्म्स ऑफ एनी इनोवेशन। तो इन दैट वे वी डेवलप्ड अनदर फीचर इज कॉल्ड ऑडियो एनालिसिस। Okay. तो आप किसी को उसकी आवाज से पहचान सकते हैं। नाउ वी आर डूइंग द फेशियल रिकॉग्निशन, वी आल्सो डेवलप द स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, द पीपल कॉलिंग देम एंड ऑफ कोर्स डूइंग द फ्रॉड्स एंड ऑल। तो वी स्टार्टेड डूइंग विद UPSTF। Okay. तो UPSTF ने यूपी स्पेशल टास्क फोर्स दे कॉल, स्पेशल टास्क फोर्स इज दे टारगेट द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थ्रू आउट। तो इन एवरी स्टेट वी आर वर्किंग विद स्पेशल टास्क फोर्सेस। Okay. So in Bihar also we are working with STF, Uttarakhand also STF, Punjab call it AGTF, Anti-Gangster Task Force। तो इन दैट वे वी आर वर्किंग तो ऑल, तो उनके तो हम यूपी को कुछ भी देते हैं हम, तो दे बेसिकली ऑफ कोर्स वंस यू मेक अ लेट्स से इम्पैक्ट, तो इन ऑल दीज लाइक टाइम जब हम ये सब कर रहे थे तो वी वर सेलिंग ऑन अ वेरी लो प्राइस। Okay. तो मेरा जो कॉम्पिटिटर या जो कंपनीज इस फील्ड में थी, बिकॉज गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि दोज गाइज हु सेल पेन ड्राइव दे आल्सो सेल AI। हाँ. तो आप AI बना के बैठे रहो, जिसका कनेक्शन है दे विल सेल इट। तो इसमें आप लोग का रेवेन्यू में काफी दिक्कत होती है। हाँ, रेवेन्यू अभी भी गवर्नमेंट में StackQ को और आप सर्च करोगे गूगल पे, यू विल नो अस बिकॉज ऑफ राम मंदिर, G20 एंड ऑल, बट गवर्नमेंट इज ओनली 30% ऑफ आवर रेवेन्यू, 70% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। बट सबसे ज्यादा यूज भी तो गवर्नमेंट ही करती है। गवर्नमेंट यूज करती है, सो वी गेट द ब्रांड नेम, नो डाउट, सो दैट हेल्प अस टू एट लीस्ट हैव अ क्रेडिबिलिटी, बिकॉज व्हेन यू वी हैव द एरिया वेयर वी आर वर्किंग इन, लेट्स से द वीडियो एनालिटिक्स और द ऑडियो एनालिटिक्स, इट नीड लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी। हम किसी एक एरिया का कैमरा लेके कुछ एनालिसिस करने वाले हैं, या तो आपका एक ब्रांड नेम है या आपकी क्रेडिबिलिटी होनी पड़ेगी। तो जब आपकी देश की पुलिस ही आपको यूज कर रही है इन दैट वे, अयोध्या जैसी जगह इवेंट में आपको यूज किया जा रहा है, G20 जहाँ पे दुनिया के सारे टॉप लीडर्स आ रहे हैं, दे आर यूजिंग, सो दैट क्रेडिबिलिटी समहाउ बीइंग बिल्ड, तो दैट ऑफ कोर्स हेल्प अस एंड ओपनली आई एक्सेप्ट इट, बट that was also one of the motive working it। So of course we are trying to solve a problem statement from the first day, जब हमें पता भी नहीं था कि हम कभी अयोध्या या G20 करेंगे, बट वी वर ऑल्सो नोइंग कि दिस विल कम एज अ रिवॉर्ड एट सम टाइम। बट इफ यू आर सेइंग दैट 20-25 lakhs में you were able to, हाँ, तो फिर मोबाइल ऐप था वो, फेशियल रिकॉग्निशन चलता था सर्वर में। व्हाट अबाउट रेवेन्यू? और जैसे आपकी टीम लाइक 80-90 रिसर्चर्स उस टाइम थे हमारे पास कुछ 32-35 की टीम थी, जिसमें हम लोग 18 लोग सारे AI से थे। Okay. 12 लोग बिजनेस में थे और बिजनेस किसी को नहीं आता था इंक्लूडिंग मी। सो तुम लोग तो सैलरी भी बहुत लेते हाँ, नहीं सैलरी कोई, सब सैलरी ऐसे ही नॉमिनल पे थे। एक्चुअली द गुड पार्ट वाज दैट द टीम वाज वेरी मच मतलब वो कि हम इम्पैक्ट कर रहे हैं कुछ। एंड दीज गाइज आर ऑलरेडी स्टडिंग इन टॉप प्लेसेस नाउ। कोई CMU में PhD कर रहा है, कोई आइडिया स्विट्जरलैंड में PhD कर रहा है। सो दीज गाइज आर लाइक, जो उनको करना था वो वहाँ पे पहुँच गया बिकॉज ऑफ दिस वर्क। बट येस, ये जो जगह थी ना, ये जो काम था, बिकॉज दिस इज
वन ऑफ इट्स ओन काइंड, लाइक अब ऐसा काम मतलब हर जगह नहीं मिलता है। हो सकता है कि आप ई कॉमर्स में बहुत भी कुछ इनोवेशन कर लोगे तब भी कुछ नया नहीं कर पाओगे। हाँ, पर जहाँ पे इतना क्राइम हो रहा है इंडिया जैसे देश में, जो देश अगर सुरक्षित नहीं रहेगा वो डेवलप्ड कैसे बनेगा? आप बिहार इसलिए नहीं जाना चाहते हो क्योंकि आपको डर लगता है। तो वो सिक्योरिटी इज द प्राइमरी थिंग विच कम्स इन आवर माइंड एंड वी ऑलवेज इग्नोर इट, एंड दिस अ बिग थिंग। तो वी थॉट कि यार सॉल्व इट, बिकॉज ठीक है पैसा नहीं, रोटी कपड़ा मकान के बाद सिक्योरिटी आती है, पर कभी ना कभी सिक्योरिटी आती है। सो वी ऑल्सो स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग ठीक है गवर्नमेंट से वी आर मेकिंग सम काइंड ऑफ अ कैपिटल, क्योंकि आपको 20 लाख रुपए एक सैस पे या ई कॉमर्स कंपनी एक साल में देगी, लाख लाख रुपए करके महीने, राइट? गवर्नमेंट आपको एक साथ 20 लाख देती है 3 साल का, वो 3 साल चलाने आप टेंडर पे काम करते हैं। हाँ, टेंडर पे काम करते हैं। तो मेरे लिए वो पैसा ना बहुत जैसा इन्वेस्टमेंट टाइप हो गया कि यार चलो एक साथ 3-4 हो जाएगा तो 60 लाख होगा, तो फिर हमारे पास एक साल चलाने के, फिर अगले साल कुछ और कहीं ढूंढ के काम कर लेंगे। तो हम इनोवेशन भी करते रहते थे कि अगले साल बेच के कहाँ से 60 लाख लाने हैं। तो इसी बहाने हमारा इनोवेशन भी हो रहा था, और एट द सेम टाइम वी वर वर्किंग विद द पुलिस, तो हमें बड़ा मतलब एक्यूरेट भी होना था। क्योंकि पुलिस इज समथिंग कि दो धारी तलवार है, अगर आपने गलत किया तो यू विल आल्सो बी लाइक द सेम FIR कैन कम अगेंस्ट मी एज वेल, कि आपने क्यों इतना गलत प्रोडक्ट बेचा, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग, राइट? I think this technology can also be helpful for like for example abhi Kolkata the case happened. Exactly. So something like protection for women can also अब be. आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो हॉस्पिटल, सिंस वी वेर लाइक आइडेंटिफाइंग कि हॉस्पिटल बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कि हॉस्पिटल इज अ सेंसिटिव प्लेस। तो और स्टैक्यू इज ऑलरेडी वर्किंग विद हॉस्पिटल्स इन आंध्रा। हम 3000 हॉस्पिटल कर रहे हैं वहाँ पे, और किसी को नहीं पता है। जार्विस इज ऑलरेडी देयर इन द हॉस्पिटल्स। तो होता 2 प्रॉब्लम है, एक तो जेनरिक सिक्योरिटी प्रॉब्लम, तो कैमरा सॉल्व करता है। दूसरा ये कि कई बार OPDs नहीं होती, डॉक्टर नहीं जाते, गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं जा रहा, किसको पता है? सो दोज काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन वेयर डॉक्टर्स आर गोइंग टू द OPDs और नॉट, हाउ मेनी पेशेंट्स कम, समटाइम पेशेंट दे ब्रिंग ऑन देयर लेट्स से दिस थिंग, सम किसी भी चीज पे लेके आ रहे होते हैं, देयर इज अ स्ट्रेचर एंड ऑल, व्हाई इट इज नॉट बीइंग यूज्ड? जो काउंटर होता है टिकटिंग का, जहाँ पे आपको टिकट मतलब वो अपना पर्चा लेता है, जो भी अपना पेशेंट होता है, वहाँ पे होना चाहिए 5 लोगों को एट अ टाइम, बट वहाँ एक ही बंदा जो पर्चा दे रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्राउंड प्रॉब्लम ऑन सम डिस्ट्रिक्ट लेवल। So this gets reported to the तो जार्विस का कैमरा देख रहा है, Okay. और इफ इट इज नॉट डन तो इट इज सेंडिंग द अलर्ट टू देयर कमांड सेंटर इन विजयवाड़ा, आई बिलीव। Okay. तो ये हो रहा है, और इट इज़ नॉट लाइक हमने देवरिया एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पे भी ये किया कि हम वहाँ पे सिक्योरिटी के भी आइडेंटिफिकेशन करते थे कि कोई मारपीट हो जाए, बिकॉज यूपी में कई बार मान लो आप लेके जाते हो पेशेंट को, डेथ हो जाती है हॉस्पिटल के अंदर, सो इट क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू द डॉक्टर्स ऑल्सो। Okay. अब ये प्रोपोजिशन हमने ऑलरेडी कई बहुत जगह पे पुश किया है। सेड लाइक वी डू नॉट हैव दैट मच एनर्जी कि अगर सामने वाले को नहीं चाहिए तो हम उनको फिर बेच पाएँ, बिकॉज सो इन दैट वे हॉस्पिटल्स वेयर और ऑलवेज ऑन आवर वो वी ऑलरेडी डूइंग इन मिडिल ईस्ट। Okay. So one of the largest chain there, I mean, we'll announce in next month, already closed like 20 of their hospital chain to be on Jarvis. Okay. I think you were also, before the podcast, you were talking about when you were shifting to Dubai and you're expanding to Dubai, people were more interested in the Ayodhya and how you help in the Ayodhya temple, Right. more than the G42 summit. Yeah. So I just, are there any cases or any story that you can tell from the Ayodhya case? So Ayodhya was like कि of course Ayodhya was always on a hot list because of many things, because एक तो राम मंदिर when was built it was always having some kind of history, right? तो ये था कि there was always like कि intelligence कि कुछ वैसा हो सकता है where people come with different number plate of the vehicle, and तो गाड़ी का नंबर प्लेट गलत होगा, एंड देन सम काइंड ऑफ अटैक विल हैपन, एंड मोस्टली दिस विल फ्रॉम तो देयर आर कपल ऑफ एरियाज, I think there were some threats as well. नदी के रास्ते हो सकता है या ऐसे कुछ हो सकता है। तो वी डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, तो ऑफ कोर्स दे somehow we built a good brand name in terms of the credibility part, because we solved or worked with the police force on some of the top crimes which happened in UP or in Punjab and all. तो credibility as a startup in India we have that. तो उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स को बुलाया, तो कुछ को ड्रोन का काम दिया होगा या कुछ को दिया होगा, वी विल गिवन फॉर दिस वीडियो एनालिटिक्स कि आप इसमें आइडेंटिफाई करिए। और हमने कुछ मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर है वहाँ पे, तो दिस इज़ लाइक कि दूर बगल में ही राम मंदिर के, ये थोड़ा सा दूर जाके, एंड कई जगह थे। तो हनुमानगढ़ी मंदिर में पहले कैमरा लगा, और लगते ही क्या हुआ कि आई थिंक कि हमने पहले 1 घंटे में करीब 22 क्रिमिनल्स पकड़े। Wow. और उसमें 144 इन सबके क्रिमिनल्स थे जो आइडेंटिफाई हुए। So मतलब क्रिमिनल्स थे वहाँ पे लोग नहीं, तो वो वाले क्रिमिनल थे जो शायद किसी वजह से
कम्युनल केसेस में आइडेंटिफाई हुए होंगे और सब राम मंदिर में गए होंगे टू Okay. वो एंड ऑल, एंड देन वी स्टार्टेड सेंडिंग द लिस्ट. उन्होंने कहा भाई 1 मिनट हमें वो क्रिमिनल चाहिए जो काफी सीरियस, बिकॉज मंदिर ऑन ऑल दीज प्लेसेस ना यू विल फाइंड. मॉल्स में भी देखो ना, मॉल्स में भी आपको अगर मॉल में कैमरा लगा दो तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्टेड क्रिमिनल्स आपको मिल जाएंगे जो बहुत सारे एटीएम लूट में है या Okay. बहुत सारे ऐसे थेफ्ट में है. तो दीज प्लेसेस हैव दैट काइंड ऑफ ट्रैक्शन फॉर द थेफ्ट काइंड ऑफ पीपल जिनका थेफ्ट का रिकॉर्ड है. ऐसा है. तो वी आइडेंटिफाइड, तो फिर वी फाइन ट्यून कि नहीं हम इन आईपीसीज को ही टारगेट करेंगे. Okay. फिर तो दैट वाज द मेन फेशियल रिकॉग्निशन दैट दे सेड कि नहीं यार, इन क्रिमिनल्स को तो ऑलरेडी बिकॉज ऑफ वेरियस इंटेलिजेंस ऑलरेडी ट्रैकिंग, वी नीड समथिंग कि विच इज वेयर द सम अननोन फेस विल कम विद इन एन आवर एंड वी हैव टू ट्रैक देम. मतलब आपको एक फोटो मिलती है एंड यू हैव टू डू अ रिवर्स फेशियल रिकॉग्निशन. Yeah, because आप लोग का so data already trained है. हाँ तो You वो cannot find हाँ new हाँ people. न्यू आपको, मुझे किसी ने मान लो दिल्ली से इनपुट आती है यूपी पुलिस को कि ये क्रिमिनल है, टेररिस्ट है जो आपके उसमें, तो आपको सर्च कैसे करोगे? Okay. तो दे वांटेड डू अ रिवर्स फेशियल रिकॉग्निशन कि लिस्ट में पहले से क्रिमिनल नहीं है, यू जस्ट अपलोड द फोटोग्राफ एंड सर्च इट अक्रॉस ऑल द क्राउड. So that we developed for them. So that is, we call it reverse facial recognition because you are not having photograph, you are adding the photograph and then getting the video feed. Okay. कि जहाँ जहाँ पे ऐसा दिख रहा है. फिर then attribute based search कि let's say white shirt, blue pant and let's say red shoes kind of a person somewhere. तो सारे videos जिसमें वो दिख रहे हों. तो these were the new innovation happened. I think कि इसके पहले नहीं हो रहा था कहीं पे भी. तो अयोध्या was this. Are there any more products that are coming in the from StackU, like apart from visual, audio? Do you have any other things? in Yeah, so plan? we have one new thing which is we are coming, which is called Jarvis GPT. Okay. So it's more like you can talk to your camera. Okay. Ordinary camera which is already there. Let's say you want to know ki, how many people came to my X store in Malad in Mumbai. Okay. So it will tell ki, is there any new sale happen or any new engagement happen today for the whole day? Submit me a report. So previously it was, of course, the analytics were happening to the camera, but it has to be generated manually. You go and select the filters and all. Now you can just do a conversation and the report can download it and PDF can be or Excel sheet can be downloaded. Okay. Without any human interference. So that will solve one level of like problem of further the privacy. क्योंकि आप फिर ह्यूमन को पूरे लूप से हटा दे रहे हो. Yeah, definitely. So this is something which any bias, anything. Any bias, anything. Anyway, then the data come. It also shows you the clips. Yeah. कि so that like say I am a marketing head, तो I'll know कि जहाँ इस clip में 3 लोग दिखे हैं, तो 3 people count in that way. So this is one of the feature we are bringing, and of course we are going to launch it in this before Diwali. Okay. तो of course I mean ये announce तभी करना था, but I'm just giving you, but we'll share more detail about it. There was one more case that you were talking about, the Pakistani border and the drug trafficking from there. Can you explain a little bit about how you guys tackled that? So what happened? So every state has their own problem. Punjab drugs, UP organized crime, Bihar organized crime. In the same way, different states have their own problem. Punjab, we all know, has a drugs car. One of the area from where people, Fajalika and some of the districts from where the many drug things get entered into the India. Yeah. So it's really difficult for Indian agencies to track them. So for example, drugs की अगर बात करें तो when you start in Afghanistan, तो 1 kilo heroin is like 1 lakh rupees. Okay. But enter into the Pakistan, it is like something around 10 lakh rupees. जब वो अपने border पे आता है, which is at like any of the border, तो it is like 1 CR. और दिल्ली में 1 किलो हेरोइन 5 करोड़ रुपए की मिलती है. कैसे बढ़ता है? How does it? So it's all like different logistics, different kind of things, which basically because just think of कि जो border में इंडिया पाकिस्तान के border में enter कराता होगा. So he must be having some kind of a logistic and all and everything, right? Yeah. So you have to track those people. You have to zero in कि यार ये लोग हैं जिन पे which who, because of course you have the data of the criminals. As I said, like we are adding the criminals. और उसमें भी इंटरेस्टिंग ये बात है कि जो क्रिमिनल्स एक्चुअली ड्रग्स में है ना, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हर 3 साल में 2000 हमारे ड्रग्स वाले क्रिमिनल मर जाते हैं. did die. तो द डेटा उसको फिर फिक्स करना पड़ता है. कंपेयर करोगे ना बाकी किसी क्राइम में, हाँ. तो ड्रग्स का क्रिमिनल हर 3 साल में 2000 क्रिमिनल्स का जो डेटा है वो यूजलेस हो जाता है. बिकॉज द कंजम्पशन इज ऑफकोर्स इट डायरेक्टली अफेक्टिंग योर हेल्थ. इफ यू फाइंड दिल्ली और इवन अदर नेबरिंग स्टेट्स, अगर ड्रग्स का कंजम्पशन देखोगे तो इट इज एक्चुअली कमिंग थ्रू द चेन इज कमिंग थ्रू दिस पंजाब. Okay. But at the same time, बिहार में आप शराब बंदी है, राइट? यू कांट लाइक डू दैट. तो बिहार की प्रॉब्लम इज द लिकर. Yeah.
सो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो तो यू विल बी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे लिकर हरियाणा से आती है. हरियाणा से. सोचो यूपी बीच में पड़ता है, then it is coming to this. So all this data is in front of police, but they can't analyze because this is all offline. It is not doing anything. So this is something where the AI is adding value to them. तो पंजाब का ये यूज केस काफी इम्पैक्टफुल रहा हमारे लिए. Can you think of any use case when it comes to AI in the future for criminology, like apart from voice recognition, visual recognition? Do you see anything that is not there and maybe stack you can build? So cyber crime is one of the things which we want to solve. Of course, this is not directly coming to our, let's say, the product ka line. But pata hai, I was just, because from my like this interest, I do a lot of research on these data. It's not the company, it's more like the personal time I give to the data and all. So what happened when you do get like someone call you and transfer the money and all these things happening. So the first level is always a mule account. वो किसी रिक्शे वाले का अकाउंट उसको पता ही नहीं कि उसके अकाउंट बना हुआ है, पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं. तो एंड इफ यू गो इन द डिटेल द टॉप 10 लेयर्स आर लाइक दैट. शुरू के 10 लेयर. और आई थिंक साइबर क्राइम इज गोइंग टू बी अ टफेस्ट प्रॉब्लम फॉर द इंडियन इकॉनमी, क्योंकि ये पैसे ड्रग्स में यूज हो रहे हैं, टेररिज्म में यूज हो रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में यूज हो रहे हैं. And this is something which I believe I want to solve. Of course, I don't know how we will intend to that. But again, वही बात है कि पैसा नहीं बनाओगे, इन्वेस्टर कहेगा कि ये सब क्यों कर रहे हो, right? Yeah. तो वो आप अपने इंटरेस्ट पे देखना चाहते हो. बट दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आई थिंक अगर हम नहीं तो कोई और स्टार्टअप करे, बट दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच नीड टू बी सॉल्व्ड. In India, every year, 30,000 crore rupees are basically being extracted using cash in cyber crime. 30,000 करोड़ रुपए. Okay. मतलब वैल्यूएशन ऑफ द स्टार्टअप, कई सारे वैल्यूएशन ऑफ द उससे स्टार्टअप बहुत ज्यादा. लाइक 300 करोड़ रुपए उसमें से हर महीने कैश में दुबई भेजे जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स द मार्केट देयर, यू सी द रियल एस्टेट मार्केट एंड एवरीथिंग इज ग्रोइंग एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग टू द साइबर क्राइम. वो एक पैसा इज ऑल ऑर्गेनाइज्ड. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि वो क्रिमिनल कहीं वहाँ बैठा. दो हॉटस्पॉट हैं, मेवात एरिया ऑफ द राजस्थान और ऑफ कोर्स वन इज इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एंड ऑल. तो इन दैट वे दिस इज समथिंग विच नीड टू बी सॉल्व्ड, क्योंकि क्राइम ऑफ द मनी इज गोइंग टू हर्ट यू इन इकॉनमी का कोई अगर कोई चीज हर्ट करता है तो इट विल बी हर्टिंग द ओवरऑल कंट्री का हर एरिया. So from 30,000 crore rupees, if we reduce it even 1,000 rupees, then 1,000 crore rupees, then also you are going to add a bigger impact. That's very nice. So I think on that note, I would like to thank you very much for coming for the podcast. Thank you, Mohit, for this time and yeah, all the your best time as well. and this platform. I really love AIM and all the best for your platform. Yeah. Thank you so much. Yeah. Thanks.